Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. A very good evening to everyone. I hope my voice is audible and everything is fine. We'll be starting the session now. A warm welcome to everyone to Tutelage Academy. Today we will be solving IBPS Specialist Officer HR previous year question paper for the year 2021, and this is the second part. In the first part I have already solved first 30 MCQs, and the next 30 MCQs I will be solving today. So first we will read the important instruction here. So this paper consists of 60 MCQs, one mark for correct answer and 1/4 mark will be deducted for incorrect answer. Time limit ध्यान दीजिए 45 minutes ही है बस. So you have less than a minute for every question, and on an average, not on an average, precisely you should target 30 seconds for every question. Rough sheets for calculation work will be there. Okay. So I will directly jump to question number 31. Okay, because up to 1 to 30 we have already solved in part 1. Yes, up to here we have already solved. Next, question number 31. The code of discipline is based on which of the following principles? Code of discipline के बारे में हमने पढ़ा है. Yes, पढ़ा है. Code of discipline किस principle पे based है? No strike or lockout without prior notice. Okay. No deliberate damage to a plant or property of the establishment. Usage of existing machinery for settlement of dispute. And what else? देखिए, कोड ऑफ डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो कोड ऑफ डिसिप्लिन हमारा जो है ना वो 16th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया था. कब? 1958 में नैनीताल में, है ना, बताया था मैंने. और इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं. वन ऑफ द थिंग्स वाज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, है ना, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोड ऑफ डिसिप्लिन में हार्मोनियस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं. तो वो सारे प्रिंसिपल्स हैं, काफी कुछ है उसमें कि कोई जो प्रिंसिपल्स है उसमें वही दिया हुआ है कि देयर शुड बी नो स्ट्राइक और लॉकआउट विदाउट प्रायर नोटिस, है ना, एंड no deliberate damage to a plant or property, usage of existing machinery for settlement of dispute. All these three things are there. और भी काफी चीजें दी हुई है कि कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लेना है जो कि कॉर्डियल रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करे, और एम्प्लॉय शुड नॉट फॉलो गो स्लो टैक्टिक्स भी एम्प्लॉय फॉलो ना करें, और कोई लिटिगेशन ना हो, फ्री ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन हो. और तो ये सारी काफी कुछ दिया हुआ है. फ्रॉम द मैनेजमेंट part also many things are given, and from the employee part also many things is given कि what should they follow and what should not be follow in order to maintain harmonious relationship, right? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा all of the above. ठीक है? Yeah, correct. Next, question number 32. Which of the following is Hertzberg hygiene factor? Very easy question. Hertzberg के hygiene factor की अगर बात करें तो कौन कौन सा hygiene factor which are very utmost necessary? Its absence will cause dissatisfaction. Absence will cause dissatisfaction, है ना. It has to be present, है ना. और motivated factors क्या होते हैं? Motivated factors क्या होते हैं? किसके absence से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, absence से काम चलता है ये, बट अगर प्रेजेंस हो तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगा. प्रेजेंस हो तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगा, है ना, एडिशनल सेटिस्फैक्शन हो. करेक्ट. तो यहाँ पे देखिए हर्ट्जबर्ग हाइजीन फैक्टर विच इज वेरी नेसेसरी, इट हैज टू बी प्रेजेंट. तो दैट इज, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रीजनेबल सैलरी हमारा यहाँ पर हाइजीन फैक्टर हो जाएगा. और ये रिकॉग्निशन एट वर्क प्लेस अगर आपको मिलता है तो इट विल एड टू योर एडिशनल सेटिस्फैक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क, सेंस ऑफ अचीवमेंट. ये हमारे हाइजीन फैक्टर, ये मोटिवेटर्स हो जाते हैं, और हाइजीन फैक्टर हमारा हो जाएगा रीजनेबल सैलरी. ठीक है, करेक्ट, सिंपल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33. अ फिक्स्ड सैलरी विच इज डिसाइडेड एज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय is an expression of what type of rewards? I will go back and will check the option. 32 का 5 है. Why do you think
दैट हाइजीन फैक्टर में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये सारे हमारे मोटिवेटर्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आपको वर्क सेटिस्फैक्शन मिलता रहे, है ना। ये सारे मोटिवेटर्स है। हमारा आंसर हो जाएगा रीजनेबल सैलरी, है ना। हमारा एक इमीडिएट बॉस का होना, रीजनेबल सैलरी होना, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में होना, ये सारी चीजें एक बेसिक हाइजीन फैक्टर है दैट हैज टू बी देयर, दैट देयर एब्सेंस विल कॉज अल्टीमेट डिससैटिस्फैक्शन। ओके, बट हाँ, ओके, नो इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चंस पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराने का मोटिव क्या क्या होता है। पहला कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है, जो जो चीजें सिलेबस में है उन चीजों से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं वो समझना है। दूसरा, जब टाइम बहुत कम रहे और आप बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, उस समय आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट करने हैं, तो आप कैसे करोगे, इसको आपका एक आइडिया आपको मिलता है, आप प्रैक्टिस कर सको उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 33, सपोज यू आर इन एक वेस्टिबल ट्रेनिंग की तरह सोचते हैं, आपके पास हार्डली 30 सेकंड्स है, यू हैव टू आंसर दिस। अ फिक्स्ड सैलरी व्हिच इज डिसाइडेड एज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, है ना। तो जब भी आप कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन, कंपनी ज्वाइन करते हो, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज द सीटीसी, दिस इज द सैलरी व्हिच विल बी गिवन टू यू फॉर द वर्क व्हिच यू विल बी प्रोवाइडिंग। तो दैट इज व्हाट दैट सैलरी इज reward as right, that is the basic right of employee to get that salary in order in exchange of what the labor he will be providing to employer, the reward as right। ये जो सैलरी होती है वो हमारा इंसेंटिव नहीं होता है, ये कंटिंजेंट सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। आंसर होगा पॉइंट नंबर 1। बाय एन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 इन फैक्टर्स एक्ट, हु इज टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑक्यूपायर। 1987 में अमेंडमेंट हुआ था फैक्टर्स एक्ट में, तो उसमें ऑक्यूपायर किसको अपॉइंट कर सकते हैं, ऑक्यूपायर मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। देखिए 1987 में एक्चुअली हुआ क्या था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना 1984 में, तो उसके बाद कुछ मेजर चेंजेस आए थे उस समय। फिर ऐसा हुआ कि एक अवेयरनेस आई कि फैक्ट्री में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना वो बेटर होने चाहिए, और गवर्नमेंट को कंप्लेन किया उन्होंने कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाओ सेफ्टी और हेल्थ को ध्यान रखते हुए। तो उस समय एक फैक्टरीज अमेंडमेंट एक्ट आई थी 1987 में। तो अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट कि मैनेजर को ऑक्यूपायर विल बी अपॉइंटेड एज मैनेजर विल बी अपॉइंटेड एज ऑक्यूपायर, अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो वन मोर अमेंडमेंट वाज देयर कि जो चैप्टर 4A है हजार्डस प्रोसेसेस का, तो ये इस चैप्टर 4A ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ हजार्डस प्रोसेसेस, हजार्डस प्रोसीजर, उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शन है और इम्प्रिजनमेंट है वायलेशन के लिए, जो भी इम्प्रिजनमेंट है वो सारा 1987 में ही के अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, चैप्टर 4A फॉर हजार्डस प्रोसेसेस। ठीक है, हमने पढ़ा है। ओके, और एक मुझे याद आ रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, ये भी आप पढ़ोगे एक्चुअली। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ही आई थी, तो ये दोनों अमेंडमेंट भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आए थे। और ऑक्यूपायर का डेफिनेशन अगर हम देखें तो फैक्टरीज एक्ट में सेक्शन 2N में हमें मिलता है ना, हमने क्लास में कराया है। फैक्टरीज एक्ट के डेफिनेशन याद आ रहे हैं, सेक्शन 2A 2B 2C 2D क्या क्या था, चाइल्ड, एडोलेसेंट, यंग पर्सन एंड एडल्ट, करेक्ट। उसी तरह ऑक्यूपाई का 2N था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का 2K था। तो ये सब कुछ आपके मन में आते रहना चाहिए, है ना। तो ऑक्यूपायर क्या होता है, ऑक्यूपायर का अगर हम डेफिनेशन देखें तो द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री एंड इन केस अगर इंडिविजुअल पार्टनर्स है या फिर डायरेक्टर्स है या फिर फैक्ट्री ओन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहां पे जो मैनेजर अगर कोई फैक्ट्री सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ऑक्यूपाइड है, से ओन्ड है, तो ये दोनों मैनेजर को अपॉइंट करते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो कि ऑक्यूपायर का रोल प्ले करेगा, करेक्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रीडिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी एंड मटेरियल्स फॉर सेफ परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, है ना। किसी फैक्ट्री में सारे इक्विपमेंट्स को, मशीनरी को, मटेरियल को चेक किया गया, ऑडिट की गई और उनको जहां पे जरूरत थी रीडिजाइन किया गया ताकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंश्योर हो, सेफ परफॉर्मेंस हो, हमारा वर्क प्लेस में एक्सीडेंट्स की जो संभावना हो वो कम से कम हो। सो व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड, सेफ्टी इंजीनियरिंग, सेफ्टी कंपेन, सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी ट्रेनिंग, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा सेफ्टी इंजीनियरिंग। सेफ्टी इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जो कि अश्योर करता है कि एक
एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सेफ्टी मिले इक्विपमेंट डिजाइनिंग में, मशीनरी डिजाइनिंग में, मटेरियल कीपिंग में हमारा एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ जो सेफ्टी हो वो मेंटेन हो, है ना। या तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का 1। क्वेश्चन नंबर 36, Which of the following methods of training is also known as सोशियोड्रामा और साइकोड्रामा? सोशियोड्रामा और साइकोड्रामा हम किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिल्कुल भी नहीं। मिररिंग, मिररिंग में आप क्या करते हो, अपने मेंटी को या अपने बॉसेस को, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो उसको आप मिरर करने की कोशिश करते हो। मिररिंग इज लिटिल बिट मोर देन शैडोइंग। शैडोइंग में आप उनके काम को फॉलो करते हो, उनके काम से सीखते हो। मिररिंग में आप उनको एग्जैक्ट इमिटेट करने की कोशिश करते हो कि हाउ द वे ही स्पीक्स, द वे ही सिट्स, द वे ही टॉक्स टू क्लाइंट्स, आप बिल्कुल इमिटेट करने की कोशिश करते हो, वो जाता है मिररिंग। अप्रेंटिसशिप बिल्कुल भी नहीं होगा, ट्रेनिंग का मेथड है ये। रोल प्लेइंग हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, रोल प्लेइंग हो जाएगा। तो रोल प्लेइंग में क्या होता है कि रोल प्लेइंग में हम लोग एक्ट आउट करते हैं टू एक्सप्लोर सिचुएशन एंड गेन इनसाइट। तो यहाँ पे भी सोशियो ड्रामा और साइको ड्रामा में भी, है ना, में भी एक्ट आउट किया जाता है टू अंडरस्टैंड एनी सिचुएशन और and to get explore the situation and to gain insight from it. That is the answer will be 36 का question option 4. Yes, correct. Question number 37. It is a systematic cyclic pattern of communication. The statement refers to systemized cyclic pattern of communication. Cyclic pattern में क्या होता है? Sender replying to receiver, receiver then replying to sender. तो ये हमारा एक cyclic pattern बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम है ना, सिस्टमाइज्ड। informal information system, informal information system, management information system, all of the above, none of them. Yes, so answer for question number 37 will be management information system, MIS is systemized। इसमें एक डेटा होता है ना, हर डिपार्टमेंट से MIS फ्लो होता है और MIS से फिर डेटा एंटर होता है कि हर डिपार्टमेंट में एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ एनी टाइम पीरियड कौन कौन से काम हुए हैं, कौन कौन से काम पेंडिंग है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए हैं, है ना। MIS हर जगह से डेटा कलेक्ट कर रहा होता है और एक सिस्टमाइज्ड वे में कलेक्ट करता है और फीडबैक भी देता है अपर मैनेजमेंट को। अपर मैनेजमेंट उससे डिसीजन लेती है एंड देन अगेन इन द नेक्स्ट डे इट कलेक्ट्स द डेटा, है ना, एंड देन कलेक्ट्स द डेटा एंड देन इट एट द एंड ऑफ द डे इट गिव्स द डेटा to management, to senior management, to the CEO and they take the decisions accordingly and then the things repeat, है ना। तो MIS हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 37 में। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट पॉइंट नंबर 3 कैन बी सिस्टमेटाइज्ड साइक्लिक पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अ लीडर यूजेस ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। Very interesting question. Uses criticism, encourages growth, sets objective, gives order and direction. Quickly, ये 5-10 seconds वाला question है जिससे आप time save कर सकते हो। Question number 38. I'll be checking the answers now. 38 में कोई भी लीडर कभी भी क्रिटिसिज्म को एज अ टूल नहीं यूज करता है। वो क्रिटिसाइज लीडर आपको आगे नेगेटिव ट्रेट्स को उठाकर क्रिटिसाइज कभी नहीं करेगा, बल्कि वो पॉजिटिव ट्रेट्स को हाईलाइट करेगा। लीडर अगर बाय डिफॉल्ट लीडर दिया हुआ है ना, तो आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के जैसा सोचिए, है ना। तो ये रहता है कि लीडर्स के तो कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से लीडर दिया हुआ है कि लीडर की क्या क्वालिटी है अलग से दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जैसा सोचना है। तो वो कभी भी आपके क्रिटिसिज्म को यूज नहीं करता आपके अगेंस्ट, इनफैक्ट आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इनकरेजेस ग्रोथ, यस। सेट्स ऑब्जेक्टिव, यस। ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन को देना, ये काम कभी भी लीडर का नहीं, मैनेजर का होता है। मैनेजर का काम है टू गिव ऑर्डर, टू गिव डायरेक्शन। लीडर का क्या काम है? टू एनकरेज यू, टू सपोर्ट यू, टू गिव यू अ विजन, है ना, आपको एक विजन प्रोवाइड करना कि भाई तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज है, यू शुड बी डूइंग दिस एंड दैट इन योर लाइफ। और उसके बाद फिर आप खुद ही अपनी लाइफ के लिए स्टेप्स लेते हो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड व्हाट शुड आई बी डूइंग। तो यहाँ पर गिव्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन वाला काम जो है ये अथॉरिटेटिव हो जाता है और ये मैनेजर के पास आ जाएगा। सो आवर आंसर विल बी बी एंड सी। डन, क्लियर। पॉइंट नंबर 3, 38 का आंसर है पॉइंट नंबर 3। 39, थ्योरी वाई स्टेट्स दैट, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, जो कि 2 तरह के लोगों के बारे में बताता है। थ्योरी एक्स वाले लोग जो होते हैं वो इनहेरेंटली दे डिसलाइक वर्क, दे डू नॉट लाइक टू वर्क, उन्हें फोर्स करना पड़ता है, उन्हें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट देना पड़ता है और उन्हें एक हाइटेंड सुपरविजन प्रोवाइड करनी पड़ती है। और थ्योरी वाई वाले पीपल हमारे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और
और खुद से ही काम करते हैं और उनको इतने ज़्यादा माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। तो वर्कर्स प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, ये इधर हो जाएगा। वर्कर एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, थ्योरी वाई हो सकता है। वर्कर्स हैव इनहेरेंट डिसलाइकिंग फॉर वर्क, थ्योरी एक्स होगा। वर्कर्स डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन, थ्योरी एक्स होगा। तो थ्योरी वाई में क्या आ रहा है, बस पॉइंट नंबर 2, सो पॉइंट नंबर 2 विल बी आवर आंसर, करेक्ट। Question number 40. In which of the following situation maximum compensation is paid under Employees Compensation Act 1923? मैक्सिमम कंपनसेशन कब दिया जाता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में? तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली बात हो रही है सेक्शन 4 ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है ना, वो हमारा कंपनसेशन की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तरह के, अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 25% ऑफ एम्प्लॉय मंथली वेजेस मिलेंगे, ठीक है। और अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो वर्कर हैज द राइट टू रिसीव 60% ऑफ मंथली वेजेस और ₹1.2 लाख विच एवर इज हाई, जो भी ज्यादा है ना, 60% ऑफ मंथली वेजेस और 1.2 लाख। और अगर हम परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ है स्केड्यूल में, पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कितना पार्शियल डिसेबलमेंट है, वो हम स्केड्यूल में चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। और अगर डेथ की बात करें तो है 50% ऑफ द डिसीज्ड मंथली बेसिस और 1.2 लाख विच एवर इज हाई। तो ज्यादा तो इसमें और इसमें है, लेकिन यहाँ पे 50% है और यहाँ पे 60% है, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए पॉइंट नंबर 4, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, बिकॉज एज पर दिस एक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंपनसेशन मिल सकता है। Question number 41. It is important to have 2 managers responsible for leading a disciplinary investigation because disciplinary investigation अगर चल रही है तो वहाँ पे 2 managers important है कि 2 manager रहें। क्यों 2 managers क्यों चाहिए? Why not a single manager? Yes, I will be checking the answers in 5 seconds. Now, let's read it. It provides support for each other when dealing with a stressful situation. Impartial and unbiased approach. Mandatory requirement by tribunal. ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हमने आइडिया में पढ़ा. It provides an alternative in absence of one. ऐसा भी नहीं है. 2 इसलिए होते हैं क्योंकि डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, तो यहाँ पर अनबायस्ड और इम्पार्शियल अप्रोच को इंश्योर करने के लिए 2 मैनेजर्स चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा जो अप्रोच है वो थोड़ा भी बायसनेस आ जाए, ऑब्जेक्टिविटी हमारी लॉस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इम्पार्शियल और अनबायस्ड अप्रोच के लिए हम 2 मैनेजर्स को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। आर लाइकर्ट believed which of the following types of leaders to be more effective? प्रोडक्शन ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड, जॉब सेंटर्ड। तो इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो जॉब सेंटर्ड और पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड ये तीनों तो एक ही कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। और लाइकर्ट पर्सनली बिलीव करते थे कि लीडर्स को इफेक्टिव होने के लिए पीपल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, सिर्फ जॉब या सिर्फ टास्क या प्रोडक्शन ओरिएंटेड से काम नहीं चलेगा, लीडर्स नीड टू बी पीपल ओरिएंटेड एज वेल। सो 42 का आंसर पॉइंट नंबर 3 होगा। नहीं भी पता हो तो भी आप देख सकते हैं कि ये तीनों सेम ही है, तो और ये ऑल ऑफ द अबव तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो क्योंकि कोई एक स्टाइल है ऑब्वियसली, तो पीपल ओरिएंटेड हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following are the objectives of trade union? वेजेस या सैलरीज के लिए नेगोशिएट करना, डिसिप्लिन एंड वेलफेयर के लिए नेगोशिएट करना, या फिर टू हैव अ नेगोशिएटिंग मशीनरी, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, या वन सेक, सॉरी फॉर दिस, हाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया। तो 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियंस? हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ट्रेड यूनियन हमारे इसके लिए भी बात कर सकते हैं, इसके लिए भी बात करते हैं, और एक नेगोशिएटिंग मशीनरी हो, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट कैन बी कंसिलिएशन, दैट कैन बी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन में एनी ट्रेड यूनियन नेगोशिएटिंग, और कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, तो नेगोशिएटिंग मशीनरी भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। 44. Which of the following statement about open system as given by Daniel Kurtz and Robert Khan are true? देखिए ये कॉन्सेप्ट समझिए। ओपन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लास्ट 4-5 इयर्स में 2 टाइम्स यूजीसी नेट कोड 55 में भी पूछा गया है ना। तो
और एक बार यूजीसी नेट कोड 55 पे मुझे याद है पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में था ओपन सिस्टम, और आपको मैच करना था डैनियल कर्जन, रॉबर्ट खान ने। तो देखिए कोड 55 जो है लेबर वेलफेयर जो है आपको मतलब ओवरऑल सारी चीजें पढ़नी होगी, बिकॉज यू नेवर नो किस जगह से क्वेश्चन आ जाए। और हमारा जो मटेरियल है और क्लासेस के क्वेश्चंस है वो डाइवर्स है, हर तरीके के क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। सो लेट्स रीड इट। ओपन सिस्टम क्या होता है? तो ओपन सिस्टम जो होता है ना, ओपन सिस्टम तो वी ऑलरेडी नो, सिस्टम में हमारा एक इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, बहुत सारे सब सिस्टम्स है, आपस में रिलेटेड है, और फीडबैक है। तो ओपन सिस्टम वो होता है जो ओपन टू एनवायरमेंट हो, है ना, तो जो कि फीडबैक एनवायरमेंट से ले रहा हो और एनवायरमेंट को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा हो और अपने आप में स्टेबल है ना। तो कोई भी आप सक्सेसफुल कंपनी, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इनपुट्स में वो लेती है, रॉ मटेरियल हो गया, मैन मटेरियल्स हो गए, लोगों के सजेशंस हो गए, लोगों का फीडबैक हो गया, प्रोसेसिंग भी होती है उसके फैक्ट्री में, और फिर आउटपुट में प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट या सर्विसेज दैट इज ऑल्सो टेकन बाय पीपल, एंड देन वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करती है और अपने आप में स्टेबल है, रन करती है। वो सिंपल ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, कोई अलग सा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ओपन सिस्टम के बारे में क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत। तो ओपन द एक्सपोर्टेशन ऑफ एनर्जिक इनपुट इनटू द एनवायरमेंट, देखिए आराम से पढ़िए, यहाँ पे एनर्जिक इनपुट इनटू द एनवायरमेंट हो रहा है ना, इनपुट हो रहा है, और जैसे कि मैंने बताया मैन मटेरियल और एनी कस्टमर फीडबैक, तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है भाई, वो इम्पोर्ट हो रहा है ना, import of energetic inputs into the environment, importing into, we are importing things into environment, so this is wrong. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी एज थ्रूपुट सो दैट वर्क इज डन, यहाँ पे जो एनर्जी आई, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि इसको एक एनर्जेटिक सिस्टम मानते हैं ओपन सिस्टम में। तो एनर्जी आ रही है, एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है। So this is what is happening in an organization. तो एनर्जी आ रही है in terms of input, input can be anything, output can be products and services, जैसे कि मैंने बताया। तो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है as throughput, so work is done, this is absolutely correct. The importation of output from the environment, अब from the environment है, इस environment से हमारे कोई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है for other people to use, तो ये एक्सपोर्ट है ना भाई, है ना, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट from the environment, so this is wrong. And point number D is absolutely true. A cycle of event in which product exported to the environment, यहाँ पे भी हिंट दिया हुआ है ना, कि एक प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंट में एक्सपोर्ट हो रहा है, फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर रेपिटेशन ऑफ द साइकिल, बिल्कुल सही है। अब एक्सपोर्ट हो रहा है तो लोग यहाँ परचेज कर रहे हैं, तो वहां से वो रेवेन्यू दे रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं, दो चीज दे रहे हैं, और रेवेन्यू और फीडबैक दोनों जो है वो इनपुट को प्रोवाइड कर रही है, वो चेंज हो रही है, रेवेन्यू और फीडबैक जो है वो एज अ इनपुट एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है, करेक्ट, जिससे कि हमारा साइकिल रिपीट हो रहा है। तो वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा ओपन सिस्टम, और हमारा आंसर यहाँ पे होगा बी एंड डी। ओके डन, क्लियर। कहीं भी किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो बताएंगे। What does discipline mean in context of workplace? Workplace में discipline का मतलब क्या है? Enforcing compliance and order, a system of rules designed to improve and correct the behavior of employee, punishment or termination, exercising pressure or control. देखिए डिसिप्लिन का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम पनिश करें या टर्मिनेट करें, नो। डिसिप्लिन का मतलब ये कभी भी नहीं होता, तो ये नहीं होगा। डिसिप्लिन का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम प्रेशर या कंट्रोल एक्सरसाइज करें एम्प्लॉयज पे, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ऐसा होता है कि हम कुछ रूल्स डिजाइन करें जिससे कि लोगों के बिहेवियर को मॉड्यूलेट करें, करेक्ट करें कि भाई आपका बिहेवियर जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, और मतलब चैनलाइज करें बिहेवियर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट नॉट थ्रू पनिशमेंट, टर्मिनेशन, कोएर्सन, एक्सरसाइजिंग प्रेशर, एनफोर्स करना कंप्लायंस एंड ऑर्डर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल दबाया जाए, प्रेशराइज किया जाए या फियरफुल सिचुएशन में रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। 46 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आर करेक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें करेक्ट है? दिस एक्ट गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, बिल्कुल सही है। रिलेटेड टू डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क भाई हमने ILO में पढ़ा है ना, तो यहाँ तो नहीं होगा। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कहाँ है? ID एक्ट स्केड्यूल 5,
पॉलिटिकल फंड, यस, कैन एनीबडी टेल मी पॉलिटिकल फंड और जनरल फंड का सेक्शन नंबर कौन सा है ट्रेड यूनियन एक्ट में? सेक्शन नंबर ऑफ पॉलिटिकल फंड एंड जनरल फंड एंड ट्रेड यूनियन एक्ट याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है भाई, तो जाकर के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। जो चीजें कंप्लीट हो गई है ना, जो चीजें क्लास में हमने पढ़ा, डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट हो गई है, तो कभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो ना, तो जो भी आपने पढ़ा था आपके माइंड में रिकॉल होनी चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल फंड पढ़ा था ट्रेड यूनियन एक्ट में, पॉलिटिकल फंड का ये पर्पस है और पॉलिटिकल फंड का ये सेक्शन है ना। पॉलिटिकल फंड सेक्शन नंबर, एनीबडी? जनरल फंड सेक्शन नंबर 15, पॉलिटिकल फंड सेक्शन नंबर 16। 47 assertion reason, assertion क्या है? prior to formation of ILO most of legislation governing the working class in India were regressive in nature and aimed at serving the interest of Britishers। regressive मतलब backward, है ना। और तो ILO का फॉर्मेशन कब हुआ? 1919 में। उसके पहले जितने भी आईडी एक्ट थे, जितने भी हमारे इंडिया में एक्ट थे, वो रिग्रेसिव इन नेचर थे और ब्रिटिशर्स के एम को सर्व करते थे। बिल्कुल सही, कोई गलत तो है नहीं इसमें। इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब आंसर बताइए, या प्लीज आंसर इट, या आई विल बी बैक इन अ मिनट। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47 विल बी पॉइंट नंबर 1। ए हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। पॉइंट नंबर 2 भी सही है, बट क्या ये रीजन है? ये बस एक स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, बट क्या ये रीजन बता रहा है? क्या ये रीजन बता रहा है? रीजन नहीं है, ब्रिटिश कॉलोनी है ये। इससे बेटर रीजन ये हो सकता है कि जो क्योंकि आईएलओ के बाद मेनली लोगों ने प्रोटेस्ट करना, लोगों ने मिलिटेंट होना, लोगों ने अवेयर होना कि नहीं उनकी कि दे शुड दैट इंडिया शुड बी हैविंग प्रॉपर सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन एंड दे शुड नॉट बी गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिशर्स। ये अवेयरनेस धीरे धीरे आई, है ना। और तो यहाँ पे ये रीजन होना चाहिए प्रॉपर। सो रीजन ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पॉइंट नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, रीअरेंज द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉजिकली। 5 पॉइंट्स दिए हुए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 48 का जो आंसर है ना, वो वेरी ब्यूटीफुली एक्चुअली बिल्कुल सही ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर डिसीजन क्राइटेरिया को आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर एलोकेशन ऑफ वेट टू क्राइटेरिया, ओके। और and then after that you will see what are the alternatives you have. You will analyze the alternative and then you will select one alternative and you will implement the alternative, okay, that's it, है ना। प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई कंपनी को इस बार प्रॉफिट की ओर लेके जाना है, मान लीजिए कंपनी लॉस में है पिछले 2-3 सालों से, तो तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? प्रॉफिट ही चाहिए। उसके बाद अल्टरनेटिव्स हमारे हो सकते हैं कि प्रॉफिट हम कर सकते हैं 2 तरीके से, या तो कॉस्ट कटिंग करें या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए, दोनों में से 2 में से एक चीज कर सकते हैं। तो फिर एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे हम लोग एनालाइज करके, तो लाइक दैट। तो ABCDEFG हमारा आंसर है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में लिखा हुआ है। 49 द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज टू structure the organization environment so that manager and employees can use their developed skills and abilities to the fullest। बिल्कुल ठीक लग रहा है। reduce the level of uncertainty in managerial decision making throughout the organization। create internal environment which is conducive to self expression। change the traditional relationship between the supervisor and subordinate, okay। इसमें सारे पॉइंट्स ही पॉजिटिव है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कराना, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनका बिहेवियर को चैनलाइज करना कि सब आपस में एक दूसरे के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहे और प्रोडक्टिव हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़े। दैट्स इट, है ना। तो वही चीज है कि दे आर यूजिंग देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज टू द फुलेस्ट। तो पॉइंट नंबर 1 तो डेफिनेटली ट्रू है, लेकिन ये दोनों भी गलत नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है देन द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हमारा कम होता है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे कि लोग सेल्फ एक्सप्रेशन खुद को सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली। और जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट, जिसमें कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली बात आती है, वो चेंज होकर थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल की तरफ बढ़ती है। तो हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव डेफिनेटली हो सकता है।
Question number 50. Which of the following statement relating to labor management cooperation is not correct? Labor management cooperation is another word for WPM, workers participation in management. It includes WPM, yes. It includes joint consultation, yes. It includes problem sharing, yes. It does not include information sharing, this is wrong. It includes the labor management cooperation में लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का वन फॉर्म WPM है. इनफैक्ट लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन में इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है प्रॉब्लम शेयरिंग, तीसरा पार्ट है ज्वाइंट कंसल्टेशन, चौथा पार्ट है WPM. तो ऑल आर देयर इन LMC विच इज लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन. तो यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड लिखा है, तो पॉइंट नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 51. अरेंज द स्टेप्स इन मैन पावर प्लानिंग इन द ऑर्डर इन विच दे अकर. यूनिट 2 HRM में हमने पढ़ा है मैन पावर प्लानिंग के स्टेप्स को अरेंज करना है. टेक 30 seconds टू रीड इट एंड देन आंसर. सबसे पहले क्या करते हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट. सपोज इन 2025 we target to increase our revenue by 10%. So for that we will have to suppose increase production by 10%. So for that maybe we need to recruit some people, or we need to have such and such number of people in such and such department. So we have determined manpower requirement. तो पहला तो यही हो जाता है, सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि जो करंट मैन पावर है वो उससे कितना मैच कर रहा है. अगर नहीं मैच कर रहा तो गैप को फाइंड आउट करके अकॉर्डिंगली या तो रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट प्लान बनाकर, या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जहां जरूरत होती है उसे करते हैं. ठीक है, तो डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन वी विल बी तो मैन पावर रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करके हम क्या करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं, मैन पावर को फोरकास्ट करते हैं कि टोटल फोरकास्टिंग हमारी इतनी है ना. बताते हैं कि भाई वी नीड 10 people इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 12 people इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड 3 people इन फाइनेंस डिपार्टमेंट. फोरकास्ट करके हमने बता दिया. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे मैन पावर इन्वेंट्री जो कि करंट इन्वेंट्री है उसमें कितने लोग हैं. तो मे बी वी नीड 10, 12 एंड 3 people, वी हैव 9, 8 एंड 2 people. तो मैन पावर इन्वेंट्री हमने देखा. उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं कि इतने लोगों का गैप है तो इतने लोगों के को हम रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और प्लेस करेंगे. तो यहाँ तो सिंपल है कि FEG ऐसा ही होगा, FEG यहाँ पे इसमें ऑप्शन में. लेकिन उसके पहले वी विल आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ मैन पावर सप्लाई, कि अगर रिक्रूटमेंट करना है तो रिक्रूटमेंट हम कहाँ से करेंगे. या तो कॉलेज से भी सप्लाई मिल सकता है, या फिर आउटसाइड कॉलेज भी जो काफी लोग अनएम्प्लॉयड है वहां से सप्लाई मिल सकता है ना. तो हम पहले वहां से देखेंगे कि भाई हमारा मैन पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम अपना रिक्रूटमेंट प्लान बनाएंगे. सो पॉइंट नंबर 1 विल बी आवर आंसर, है ना. क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा. आई होप कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following is not a segment of David McClelland theory of needs? बहुत इजी क्वेश्चन है. थ्योरी ऑफ नीड्स में 3 तरह के नीड्स की बात की है डेविड मैकलेलैंड ने, और हर इंसान के अंदर होता है ये जब भी आप इसे पढ़े, कोई भी मोटिवेशन की थ्योरी पढ़े तो उसे आप अपनी लाइफ में, आपका जो लाइफ का जो अप्रोच है, एस्पेक्ट है, आप उसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि व्हाट यू नीड मोस्ट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर अचीवमेंट. तो दीज 3 थिंग्स आर देयर. तो हमारा पॉइंट नंबर 1 आंसर हो जाएगा. दिस इज नॉट अ सेगमेंट. क्वेश्चन नंबर 53. द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी डज नॉट ले एम्फेसिस ऑन. ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बाय एल्टन मायो वो क्या बताती है, वो बताती है कि भाई पीयर्स इंपॉर्टेंट है, एक सेंस ऑफ, एक कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, जिस एनवायरमेंट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनकरेजिंग और सपोर्टिंग बातें होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए. ये सारी चीजें एल्टन मायो ने बताया. इनफॉर्मल ग्रुप होना चाहिए, यस. ह्यूमन मोटिवेटर्स होने चाहिए, यस. पीयर मतलब पीपल, लोग होने चाहिए. फ्रेंड आपके, अगर आप वर्क प्लेस पे जाए तो वहाँ पे आपके कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनको देखकर आप स्माइल करें, उनसे बातें करें और एक क्लोज सर्कल शेयर कर सके. तो दीज 3 विल बी देयर. प्रिंसिपल्स की बात ऐसा नहीं है, अगर ये बिल्कुल प्रिंसिपल्स पे ही एम्फेसिस डाला है ऐसा नहीं है, इन्होंने इन सारी चीजों पे कॉन्टेक्स्ट पे एम्फेसिस डाला है. तो ABCD हमारा आंसर हो गया. ओनली A डज नॉट ले एम्फेसिस, डज नॉट है तो आंसर हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर A, ओनली A. ठीक है. The social concept of welfare implies the welfare of man, his family and his community. Yes, बिल्कुल सही है. Social concept of labor welfare में वो इंसान, उसकी फैमिली और उसकी कम्युनिटी को
कितने अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, कितने बेनिफिट्स मिल रहा है सोशल कंटिजेंट सिचुएशन में, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि नहीं। तो व्हाई, तो रीजन क्या हो जाएगा, ऑल द थ्री वर्क टुगेदर और इंडिविजुअली सप्लीमेंट वन अनदर इन ए 3D अप्रोच। बिल्कुल सही है, ये रीजन भी बिल्कुल सही है कि एक इंसान है तो वो अकेला नहीं है, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली के लिए उसकी कम्युनिटी है। तो ऑल द थ्री सप्लीमेंट ईच अदर, सो दैट इज वाई सोशल कॉन्सेप्ट में हर किसी की हेल्प होनी चाहिए, है ना, इन तीनों की। सो आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, आर डज एक्सप्लेन ए प्रॉपरली। बाकी ये तो रॉन्ग वाला नहीं होगा, पॉइंट नंबर 2 करेक्ट। Which of the following is not the method used in training? ट्रेनिंग में कौन सा मेथड यूज नहीं करते? बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 55। माइंड यूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन पक्का होगा, कौन सा ऑप्शन पक्का नहीं होगा, उसे देख करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको तरीका पहले बताया है, ये कैसे सॉल्व करना होता है। यस, क्वेश्चन नंबर 55, द आंसर विल बी पॉइंट नंबर 55 का 5 नहीं होगा भाई, 55 का होगा 1। रिग्रेशन ट्रेनिंग का मेथड है? नहीं, रिग्रेशन ट्रेनिंग रिग्रेशन हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज होता है, इट्स नॉट अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। सो पॉइंट नंबर बी डेफिनेटली विल बी आवर आंसर। इन आवर आंसर पॉइंट नंबर बी विल डेफिनेटली बी देयर। ठीक है, इतना देख सकते हैं, नहीं पता मान लीजिए बी किस में है, बी इसमें है, बी इसमें, ठीक है, तो बी और एफ ये दोनों में है। सो एफ परसुएशन इज ऑल्सो नॉट अ टेक्निक। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हमें डाउट किस में हो रहा है, ए और डी में हो रहा है। लेट्स गो देयर। ए है बजिंग, डी है रैशनलाइजेशन। अरे भाई बजिंग होता है ना, बज सेशन होता है ना। बज सेशन में क्या किया जाता है, बज सेशन में ऑल द पीपल दे सिट टुगेदर, दे स्टार्ट डिस्कशिंग ओवर सो मेनी थिंग्स। जैसे कि कभी बचपन में ऐसा हुआ है ना कि क्लासरूम में हम स्कूल जाते थे और क्लासरूम में टीचर कभी नहीं है, तो सारे बच्चे एक नॉइजी एनवायरनमेंट सा क्रिएट करें, द साउंड व्हिच वाज कमिंग वाज लाइक समथिंग इज बजिंग, बज है ना, इतना नॉइज से सब बातें करते थे बच्चे। तो दैट इज व्हाट इज बज सेशन। बज सेशन हेल्पफुल इसलिए है ट्रेनिंग के लिए क्योंकि बज सेशन स्टिमुलेट करता है, जो लोग कम बोलते हैं या फिर जो लोग अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर पाए वो अपना ओपिनियन शेयर कर सके, और साथ ही साथ बज सेशन एलिमिनेट कर देता है उन लोगों को जो कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, है ना। तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए बज सेशन भी एक मेथड ऑफ ट्रेनिंग कह सकते हैं या फिर मेथड ऑफ डिस्कशन, बेटर है कि एक मेथड ऑफ डिस्कशन है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आइडियाज बाहर आ सके। बट इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बी एंड ए एंड डी, तो रैशनलाइजेशन तो बिल्कुल भी तरीका नहीं है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का तरीका रिग्रेशन नहीं है, परसुएशन नहीं है, और साथ ही साथ रैशनलाइजेशन नहीं है। बजिंग भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, और रोल प्लेइंग तो है ही, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो है ही। तो यहाँ पे एक्चुअली ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसा ही बज सेशन होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आइडियाज बाहर आते हैं। इसलिए हम ई को कर रहे हैं तो ए को भी करेंगे और सी को करेंगे, और बी डी एफ हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर ए, दिस आर नॉट द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यू चैलेंजेस इन एचआरएम? राइट साइजिंग इज ऑलवेज अ चैलेंज, आउटसोर्सिंग भी चैलेंज होता है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट भी चैलेंज होता है ना, कि बिल्कुल करेक्ट पीपल एट करेक्ट टाइम एट करेक्ट प्लेस को इंश्योर करना एचआर का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कहाँ से कितने आउटसोर्सिंग करनी है और डाइवर्स एम्प्लॉइज को कैसे मेंटेन करना है। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following can be referred to psychological contract between employer and employee? देखिए सरप्राइजिंगली साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट से भी पीएसयूज में और यूजीसी नेट पे दोनों में क्वेश्चन आ रहे हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नॉट रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि कभी हुआ ना, जैसे कि किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस किया दैट यू वर्क 1 year here and then I will give you promotion और then I will give you 10% सैलरी हाइक। तो वो बस आपको ऐसा ही मोटिवेट करने के लिए बोलता है, रिटर्न नहीं होता। तो ये है ना, ये आपस में इन दोनों के बीच में होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, कि चलो ठीक है 1 साल काम करते हैं, उसके बाद तो मुझे यहाँ पे बॉस ने बोला है कि इफ यू परफॉर्म रियली वेल देन आई विल रिकमेंड यू फॉर प्रमोशन। तो जो बोला हुआ रहता है बस इस तरीके से, वो होता है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि लॉयल्टी और ट्रस्ट प्ले करता है रोल। पे एंड वर्किंग कंडीशन नहीं, ये सब कुछ नहीं, बस लॉयल्टी एंड ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है साइकोलॉजिकली, नॉट ऑन पेपर वर्क, वो होता है, उसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट।
58. Which of the following kind of stress is faced by individual when an individual unlikable results from his interaction with the environment? ये क्वेश्चन पेपर हमने टाइप करवाया है अपनी टीम से, तो कहीं कहीं शायद कुछ मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग. तो किस तरह का स्ट्रेस हम फेस करते हैं, कोई इंडिविजुअल फेस करता है जब वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और जो रिजल्ट है वो अनलाइकेबल हो, या जो रिजल्ट हो उसके लिए वो श्योर नहीं हो कि क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं. तो इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस. एंटीसिपेटरी स्ट्रेस मतलब मान लीजिए आपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट रिजल्ट क्या होगा, वेदर यू विल विन टॉप 10 और टॉप 100 और वेदर यू विल क्वालिफाई और नॉट. तो ये जो आप एंटिसिपेट करके स्ट्रेस लेते हो, है ना, तो यू इंटरेक्टेड विद द एनवायरनमेंट एंड यू डोंट नो अबाउट द रिजल्ट, और रिजल्ट मे बी लाइकेबल अनलाइकेबल, यू डोंट नो, तो आप एंटिसिपेट करते हो, दैट इज एंटिसिपेटरी स्ट्रेस. क्वेश्चन नंबर 59. रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट. बहुत ही आसान है. स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट: सर्चिंग, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, प्लानिंग, स्क्रीनिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट. आराम से देखिए क्या क्या होना चाहिए. अगर एज एन एचआर मैनेजर इफ यू आर प्लानिंग फॉर रिक्रूटमेंट, व्हाट यू विल बी डूइंग. सबसे पहले तो हम प्लान ही करते हैं भाई, है ना, तो स्टार्टिंग तो 3 ही होगा. तो जो भी प्लान करते हैं उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं कि हमें प्लान करना है भाई कि वी विल बी रिक्रूटिंग 50% मेन 50% वुमेन. ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट कि कहाँ से रिक्रूट करेंगे, कैसे रिक्रूट करेंगे. ठीक है, एंड देन व्हाट वी डू, एंड देन वी स्टार्ट फॉर सर्चिंग, देन वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट, एंड देन वी स्क्रीन, है ना. हमने फिर सर्च करना शुरू किया कॉलेजेस में या पे कहीं पे भी जहाँ पे लोग जॉब, जिनको जॉब चाहिए. उसके बाद फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं उनकी, और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. ये तो हमेशा लास्ट में ही होगा, तो अकॉर्डिंगली पॉइंट नंबर 2 आंसर होगा. ओके. 60. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैरेक्टराइज द बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड. बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड. बैलेंस स्कोर कार्ड में कैस्केडिंग इन नेचर होता है एंड इट इज परवेसिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सही है. ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल का, हर जगह का डेटा बैलेंस स्कोर कार्ड में होता है और वो ऐड होता चला जाता है. कैस्केडिंग इन नेचर बिल्कुल सही है ना. आपने इस फर्स्ट क्वार्टर क्या परफॉर्म किया, सेकंड क्वार्टर कैसा परफॉर्मेंस रहा, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, बैलेंस स्कोर कार्ड में सारा होगा. लास्ट पे कैस्केड होकर के आपको बताएगा ओवरऑल योर ईयर परफॉर्मेंस. इट इज सपोर्टेड बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम. बिल्कुल सही है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गोल इज नॉट रिजिड. ये गलत है भाई. गोल्स बिल्कुल रिजिड होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड में. अब एग्जैक्ट बताया जाता है कि किसने कितना गोल अचीव किया, कितना परसेंट गोल अचीव नहीं किया. सो दिस इज रॉन्ग. कस्टमर फोकस बहुत सही है, बिकॉज बैलेंस स्कोर कार्ड किस लिए है कि एज एन एम्प्लॉय हाउ मच यू आर एफिशिएंट एंड व्हाट तो या सॉरी. So our answer here will be point number 1, 2 and 4, not point number 3. So yes, point number 3 will be our answer. ठीक है. Yeah, so that's it friends. I hope आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा कि IBPS से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए. यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, है ना. 2 चीजें होती हैं, आपको थ्योरी भी पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करना है. एंड यस, कभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. ट्यूटोरियल अकेडमी के चैट एप्लीकेशन पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं. Yes, so I will be ending the session now. Thank you all for your time. Thank you. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.